Good morning, sir. 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 गुड मॉर्निंग ऑल। तो Good morning. क्या करना है? क्या बात है, सब चुपचाप? Sir, new chapter. So day before yesterday, I think on Saturday, we have discussed about the conditions of no work done. कौन कौन सिचुएशन में वर्क डन नहीं हो सकता? We had talked about them, isn't it? So today we had also talked about the energy, then the capacity of doing work is called energy. ये भी बात कर लिए थे. Then we had also said, discussed about the unit of energy. The unit of energy is as same as the unit of work, and that is joule. Okay, now let us talk about the different forms of energy. When we say different, before that, just let me check. Yeah. शायद कोई कुछ बोला, हमको सुनाई नहीं दिया. तो the reason is my headphone was not connected to that. So if anybody have any doubt before we start the new discussion, you can talk now. इससे पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं. Yes. Okay. Okay. Do anybody have any doubt? किसी को कोई डाउट है रिलेटेड टू वर्क एनर्जी? नहीं. Okay. So different forms of energy. First one is mechanical energy. Now, what is mechanical energy? Is the energy that is possessed due to motion of a body. Motion के चलते जो एनर्जी पोजेस करता है बॉडी, उसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन, motion doesn't only means that the body is moving. Motion only doesn't means that the body is moving. Sometimes what happens, the motion, the state of motion is also the rest. If the body is not moving, that is also a state of motion. So at the state of rest also,
the body can possess potential mechanical energy. सर ये इससे कैसे हो सकता है? अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा तो उसमें एनर्जी कैसे होगी? होगा ना? I don't have something to show you. Think of a situation. You had a rubber band, stretched rubber band. अब रबर बैंड को स्ट्रेच किए हुए क्या वो मूव कर रहा है? नहीं. एंड व्हेन यू लीव दैट रबर बैंड, स्ट्रेच रबर बैंड, जो रबर बैंड को खींच के रखे थे, ये मोशन में नहीं था, मगर जैसे ही छोड़ते हैं क्या होता है? इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क. वो कुछ काम कर सकता है. क्या क्या? जैसे अरे छोटा सा एक पत्थर को फेंक सकता है, कागज का टुकड़ा को डिस्प्लेस कर सकता है. अगर डिस्प्लेस कर रहा है मतलब काम कर रहा है. कोई भी चीज को डिस्प्लेस किया मतलब वो काम किया. सो फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स फ्रॉम? ड्यू टू द स्ट्रेच्ड रबर बैंड. नाउ अनदर एग्जांपल मे बी, दबा के रखें, मोशन में है नहीं, बट जैसे ही छोड़ते हैं इसका टिप को ऊपर करने की कैपेसिटी रखती है ना? ये देखो. तो ये जो है ये किस लिए हो रहा है? इसके अंदर में जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, इसको जब हम लोग दबाते, जा चल गया ना कहीं और गिर के. अच्छा खोज लेते हैं. ठीक है, जैसे मान के चलो ये स्प्रिंग है, इसको जब दबा के हम छोड़ेंगे तो क्या करेगा? ये रिफिल को डिस्प्लेस कर सकता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द energy stored in the spring, and this energy is also an example of mechanical energy. ये भी mechanical energy का ही type है. So it is not necessary that all the time the body must be in motion and it will possess mechanical energy. Due to the deformation and position of the body may possess some energy, and that also comes under mechanical energy. वो भी mechanical energy के अंदर में ही आता है. So we understood now that if a body is in motion or if a body is at rest, both of them can possess mechanical energy. ये हम लोग समझ गए. अब दोनों तो सेम होगा नहीं. बॉडी रेस्ट पे है, मोशन पे है, एनर्जी है, तो दोनों सेम तो नहीं होगा. दोनों में डिफरेंस तो होगा. हाँ डिफरेंस है. और वो दोनों क्या है? इफ द बॉडी इज इन मोशन एंड इट पोजेसेस एनर्जी, इट इज काइनेटिक एनर्जी. अगर बॉडी मोशन में है और ऑब्वियसली बॉडी मोशन में रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगा, और वो एनर्जी कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी. और इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड और the position is changed or it is the shape and size of the body is changed, then it will possess another kind of mechanical energy, and that is termed as potential energy. अब उसको हम लोग बोलते हैं potential energy. ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी भी दो तरीके का हो गया. क्या क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कब पोजेस करेगा? when the body is at rest, it has changed the position or it has changed the shape or size. shape या size change करने से भी आता है. सर शेप चेंज करने से कैसे हो सकता है? एक और एग्जांपल दीजिए. जैसे as I said, the compressed spring or a stretched spring, a stretched rubber band, the string of the bow, then you can even think of the toothpaste tube, toothpaste का tube
उसको जब दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो क्या होता है, टूथपेस्ट बाहर आता है। तो उससे वो बाहर आ रहा है ना, कोई सामान को डिस्प्ले, कोई चीज को वो डिस्प्लेसमेंट करने में मदद कर रहा है। सो इट पोजेसेस एनर्जी। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh. Now what is m? Mass of the body. What is g? Gravity of the at that place, gravitational attraction at that place. And h, it is the height of the body, matlab the distance from the initial position. Okay, now दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? when the body is in motion and it is capable of doing some work, then it is said kinetic energy. उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. उसका फॉर्मूला होगा हाफ 1/2 एम वी स्क्वायर. व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. व्हाट इज एम? मास ऑफ द बॉडी. नाउ other forms of energy. In the other forms of energy, we have heat energy. Heat energy. Can heat do some work? Can it move some substance? Heat कोई चीज को मूव करा सकता है क्या? और मूव नहीं कराया तो कैसे एनर्जी है? करा सकता है. You can do that at home. You take very small pieces of paper, छोटा छोटा, काफी छोटा छोटा पेपर पीस काटो, हल्का वाला. डोंट टेक कार्डबोर्ड. ओके, देन लिट अप योर गैस. गैस जला लो और ऊपर से उस पेपर को छोड़ दो, थोड़ा ऊपर से छोड़ना. तो देखना क्या होता है कि वो सीधे नीचे गैस तक नहीं पहुंचता है. गैस उसको क्या करता है, ढकेल के बाहर के तरफ. द फ्लेम ऑफ द गैस, इट रिप्लेसेस और थ्रोज द पीस ऑफ पेपर्स away from the heat. So we can understand, by this experiment we can understand heat can also displace something. Heat भी displace कर सकता है. अगर displace कर रहा मतलब work done हो रहा है. अब work done हो रहा है तो energy होगा ही होगा, है ना. So heat is a form of energy. Heat is the form of energy that allows humans and animals to work. हम लोग हीट के चलते ही काम कर पाते हैं. हम लोग के बॉडी में जब फूड पचता है, द फूड वी ईट, व्हेन दे गेट्स डाइजेस्टेड दे फॉर्म्स हीट, एंड दिस हीट हेल्प्स अस टू वर्क. यही हीट एनर्जी के चलते हम लोग क्या करते हैं, काम कर सकते हैं. सर समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? नहीं भी आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है. वेरी सिंपल. आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. जब तुम दौड़ते हो पसीना ज्यादा आता है, isn't it? Yeah, true. Why? Because you are working, and when you are working your body produces more heat. बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तुमको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, और वही हीट के चलते हम लोग काम कर पाते हैं. कोई भी काम करते, कोई भी काम करते, सिर्फ दौड़ना ही क्या, हथौड़ा चलाओ, ट्रेडमिल पे दौड़ो, एक भारी सामान को हटाओ, कुछ भी करो, तो देखना हम लोग का बॉडी ज्यादा गर्म हो जाता है ना. तो हम लोग को जो एनर्जी मिल रहा काम करने के लिए, वो एक्चुअली क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, isn't it? ओके, या अब तक किसी को कोई डाउट है?
अभी तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बोलो। नो सर। हाँ बोलो। नो वन। ओके, अभी तक कोई डाउट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, नाउ light is a form of energy that helps something uh, for our various kinds of work, बहुत सारे काम करने के लिए, या लाइट एनर्जी क्या करता है, दूसरे किसी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए बड़ा काम आता है। लाइट एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल। Light energy is the form of energy that make things visible. हम लोग को देखने में मदद करता है या कोई भी चीज को विजिबल बना देता है लाइट। नाउ काम, इतना पर्टिकुलरली लाइट का काम को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या है, थोड़ा सा रोबोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। Robots, nowadays the robots are there, they can seek the source of light. Light source को वो लोग खोज के निकालता है। There are robots, the robots can travel towards the source of light. So by this method we can understand light can also be able to make displacement. Okay, आगे और भी है। लाइट इज अ वेरी फीबल टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब काफी वीक टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। देयरफॉर लाइट कैन नॉट मूव हेवी ऑब्जेक्ट्स। लाइट हेवी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकता। ये हाउएवर लाइट कैन मूव लाइटर ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है छोटा ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकता है। नाउ व्हाट आर द थिंग्स, इट इज यहाँ पे एक चीज और डिस्कस किया है। यू मे हैड हर्ड अबाउट हेलिस कॉमेट। सुना हेलिस कॉमेट? करेक्ट। 1986 में ये देखा गया था। 76 इयर्स बाद ये आता था, अब कभी नहीं आएगा। अब हेलिस कॉमेट कभी नहीं आएगा। 1986 में हेलिस कॉमेट दिखा था। आई हैड सीन दैट, आई हैड सीन 1986 में, हम क्लास 10 में पढ़ते थे। इन द मंथ ऑफ जुलाई, आई थिंक इट इज द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, हेलिस कॉमेट खाली आंख से दिन के रोशनी में दिखता था आसमान पे, एट द वेस्टर्न साइड ऑफ स्काई। आसमान में पश्चिमी तरफ जो है खाली आंख से ही दिखता था। शाम होता था और वो दिखता था। और वो उसका जो कॉमेट, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ कॉमेट इज। कॉमेट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस। और जैसे जैसे वो अर्थ एटमॉस्फेयर के नजदीक आता था, उसका जो है ना पीछे एक पूंछ होती थी। अब पूंछ क्या है, एक्चुअली पूंछ है नहीं उसका, वो एक बड़ा सा पथरीला ऑब्जेक्ट जो घूमता है आउटर स्पेस में। कॉमेट्स आर नथिंग बट द hard stony bodies, those can travel in outer space. And as they travel in outer space, what happens, due to the friction with the air और atmosphere, एयर के साथ फ्रिक्शन के चलते वो हीट हो जाता था। और इतना हीट हो जाता था कि हो जाता है कि वो पीछे एयर एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट पार्टिकल्स में आग लगा देता था। और ये आग जो है उसके पीछे पूंछ की तरह दिखता था।
यस, और साथ ही साथ वो ज्यादा गर्म होने के चलते क्या होता था कि उसका बॉडी से जो है थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स निकलते भी रहता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है जिसके चलते कॉमेट में पूछ जैसा दिखता है। यू मे हैड सीन फॉलिंग स्टार्स, टूटता तारा, टूटता तारा देखा होगा। टूटता तारा एक्चुअली तारा बिल्कुल भी नहीं है, दे आर नॉट स्टार्स एट ऑल। यू हैव टू मेमोराइज। हम लोग टूटता तारा बोलते जरूर है मगर वो तारा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल। इट मे बी रॉक, इट मे बी सम अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, मेटल भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो अबाउट देम। सो दे एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। किसी तरीके से क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो अर्थ के अट्रैक्शन पुल के चलते क्या होता है, तेजी से नीचे की तरफ आता है। अब जब तेजी से नीचे की तरफ आता है तो एयर के साथ फ्रिक्शन से, एयर के साथ फ्रिक्शन, आई थिंक यू हैड लर्नड अबाउट फ्रिक्शन इन स्टैंडर्ड 6, है ना। तो फ्रिक्शन से क्या होता है कि इतना गर्म हो जाता है कि वो पार्टिकल्स को बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जला देता है, आग लग जाता है पार्टिकल्स में, और खुद उसके बॉडी में भी आग लग जाता है, और वही आग जो है उसका पूंछ की तरह दिखता है। कोई कोई पार्टिकल्स, मतलब टूटता तारा, दे स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। कोई कोई बहुत रेयर है, कोई कोई अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करता है। अगर अर्थ सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिटियोर। अब तो सुना हुआ है मिटियोर, मिटियोराइट्स, है ना। तो मिटियोराइट्स फॉर्म करता है, और नहीं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिटियोर्स। तो ये क्या है कि ड्यू टू द हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी के चलते जो मूविंग पार्टिकल्स है उसमें जब आग लगती है तो फॉर्म होता है लाइट, है ना। और इसका जो है पूछ बढ़ता है धीरे धीरे। हाँ, यहाँ पे सर देखो, कोमेट। कॉमेट तो अभी बताया ना। कॉमेट, कॉमेट जो है ये बड़ा सा बॉडी है। इट मे बी ऑफ द साइज ऑफ 1 किलोमीटर एरिया भी हो सकता है उसका, उससे बड़ा भी हो सकता है। कॉमेट जो है आउटर स्पेस में फ्रीली मूव करता है, फ्रीली। वो किसी सोलर सिस्टम का पार्ट हिस्सा नहीं होता है, किसी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा वो नहीं होता है। वो जो है चक्कर लगाते रहता है, एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम तक भी हो सकता है, बट दे कैन नॉट रीच द अनदर यूनिवर्स। दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकता, मतलब दूसरे यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स नहीं बोलना चाहिए हमको, दूसरे गैलेक्सी में नहीं जा सकता। एक ही गैलेक्सी में वो जो है एक इससे दूसरे में ट्रेवल कर सकता है। यू कैन सी द एग्जांपल गिवन इन द पेज नंबर 58। 58 में देखो दिया हुआ है कि कॉमेट कैसे हो सकता है। सन के काफी नजदीक से ये चक्कर लगाता है, और चक्कर लगा के जब दूर जाता है तो सन से काफी दूर भी चल जाता है। तो कॉमेट आर ऑब्जेक्ट्स those rotates around a star or a number of star, जो एक स्टार में का चक्कर काट सकता है या एक से ज्यादा स्टार का भी चक्कर काट सकता है, और इसका कोई ट्रेजेक्टरी या फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। ये कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टार से या किसी प्लैनेट से टकरा जाता है। अब सारा चीज आउटर स्पेस में क्या हो रहा है, घूम रहा है सब चीज, देयर इज नथिंग स्टेशनरी। कुछ भी हम लोग के यूनिवर्स में कुछ भी स्टिल नहीं है, सब कुछ चल रहा है, मूव कर रहा है। अब उस मूवमेंट में किसी ने कोई प्लैनेट या कोई स्टार जो है कॉमेट के रास्ते में आ गया तो क्या होता है कि उसके साथ वो टकरा जाता है। तो टकराने के बाद
बहुत कुछ हो सकता है. When light particles full of fall on photographic film, a chemical change takes place. Due to this change, an image is formed on the film. Light particle, light actually जो है ये पार्टिकल है, फोटोन बोलते हैं. उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन पार्टिकल. लाइट पार्टिकल भी है, एनर्जी भी है, और लाइट वेव भी है. वेव, WAVE, वेव, वेव भी है. अब लाइट के लिए सिंपल फिजिक्स आसान नहीं है. सिंपल फिजिक्स से लाइट समझ में नहीं आएगा. लाइट के लिए फिजिक्स का एक अलग से सेक्शन ही बना दिया गया. इतना बड़ा है लाइट. लाइट के बारे में अगर पढ़ना चाहे, जानना चाहे, उसके लिए लाइट फिजिक्स का एक अलग से सेक्शन है जिसको बोला जाता है ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फिजिक्स. ठीक है, तो वो लाइट का अलग से फिजिक्स का सेक्शन है. तो लाइट जो है ये पार्टिकल भी है, ये वेव भी है. तो इसीलिए लाइट को वेव पार्टिकल भी बोला जाता है. और लाइट पार्टिकल का नाम हम लोग दिए हुए हैं, मतलब फिजिसिस्ट दिया हुआ है, फोटोन पार्टिकल्स. अब ये फोटोन पार्टिकल्स जब किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ता है. अब फोटोग्राफिक फिल्म, सर ये क्या होता है ना? सुनीत कुमार के दिमाग में ये सवाल आ ही गया, फोटोग्राफिक फिल्म क्या होता है? हम लोग तो कैमरा मतलब समझते हैं कि मोबाइल का कैमरा या डिजिटल कैमरा. पुराने जमाने में क्या था, फिल्म आता था, फोटोग्राफिक फिल्म, और उसको कैमरा में लगाया जाता था और शटर दबाते थे. जैसे ही शटर दबता था क्या होता है कि कैमरा का लेंस जो है ना थोड़ा देर के लिए खुलता था, खुल के फिर से बंद हो जाता था. और ये जो जरा सा खुला, आज भी हम लोग मोबाइल का कैमरा भी जो जब हम लोग शटर दबाते हैं तो क्या होता है कि उसका कैमरा का लेंस जरा समय के लिए खुलता है, खुल के फिर से बंद हो जाता है. कोई भी कैमरा, अगर वो हम लोग वीडियो नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग फोटो खींच रहे हैं, तो फोटो जब खींचते हैं तब क्या होता है कि उसका शटर खुलता है. मुआविज तोफल को बड़ा हंसी आ रहा है. भेज दे बाहर, कॉमेडी चल रहा है. इमोजीज बना के भेज रहे हो. ओके, नो, जो बात कर रहे थे कि उस समय के कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म लगता है. अब फोटोग्राफिक फिल्म किसके साथ कंपैरिजन करे? मेरे पास है एक एग्जांपल है. एक्सरे देखे हो? एक्सरे प्लेट्स, एक्सरे खिंचाने के बाद कैसे लगता है? देखिए, देखा होगा, है ना? कुछ उस तरह का ही होता था. अब एक्सरे से जो है हम लोग पॉजिटिव फोटो डेवलप नहीं कर सकते, मगर फोटोग्राफिक फिल्म से फोटो डेवलप किया जाता था. आज भी वही टेक्निक यूज करते हैं हम लोग. भले डिजिटल कैमरा से फोटो खींचते हैं, मगर जब उसका हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, एक्चुअली जो है फोटोग्राफिक लैब में, जैसे जूम लैब सुना हुआ ही होगा तुम लोग, जाकर के फोटो खिंचाते हो, आज भी वही टेक्निक ही यूज होता है. ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. 10 मिनट बचा, पहले अटेंडेंस लेते हैं, टाइम बचेगा तो आगे करेंगे, है ना? अरे बाप रे बाप, हमको लग रहा 7A का सबसे ज्यादा क्लास लिए, एकदम भरा हुआ है. या फर्स्ट वन नाउ टुडे इज सुमित कुमार. मेरे लिस्ट में आज सबसे पहले है सुमित कुमार. ये अपना नाम को आर्टिस्टिक तरीके से सजाया जो है. टुडे इज 13
So second is Ameya Anand, then Akanksha Bharti Richa, then we have Akshay Sambhav. अक्षय संभव के बाद है आतिक अंसारी, आतिक अंसारी, आतिक अंसारी पिछले दिन अटेंडेंस के साथ ही भाग गया था, है ना। जैसे ही अटेंडेंस लिए तो भाग गया था, एब्सेंट कर दिए, टेंशन नहीं लेने का। ईशा आर्या, ईशा आर्या, जानवी कुमारी, देन कोमल कुमारी, कोमल कुमारी, हाँ कोमल कुमारी। इसके बाद है कुमार आलोक, कुमार आलोक। उसके बाद है माविश तौफिल, अब है अबू समर, एमडी अबू समर। अबू समर के बाद है मोही कुमारी, मोही कुमारी। देन वी हैव नीलेश राज, नीलेश राज, एंड प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। अब है क्या तरीका है रे प्रवीण, हाँ एक दिन आते हो 2 दिन गायब, फिर एक दिन आते हो 2 दिन गायब। राजीव कुमार, राजीव का नाम इधर है, राजीव कुमार। सुनीत कुमार भी है आज। राजीव के बाद है रौनक प्रियदर्शी, रौनक प्रियदर्शी, ऋतिक कुमार, सेविंग जॉनी, देन शिप्रा सॉरी सानवी सुमन, देन शिप्रा सिंह, शिप्रा सिंह, शुभम कुमार, Somya Priydarshini is also there, I know she is there, and Sunit Kumar हो गया है, हाँ है ना। Then सुमन कुमार, सुमन, सुमन कुमार, सुमन कुमार last day he was absent, is it? सन्नी राज, सन्नी राज, सन्नी राज, और लास्ट में है उत्कर्ष कुमार। ठीक हो गया सबका, किसी का छूटा हो तो बोल देना। ओके, तो हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे लाइट से रिलेटेड, है ना। तो लाइट क्या होता है, फोटोग्राफिक फिल्म में जब पड़ता है वो क्या करता है, फोटोग्राफिक फिल्म को काला कर देता है, डार्क कर देता है, और जिसके चलते क्या होता है कि जहां जहां पे लाइट पड़ता है वहां पे एक स्पेशल इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और इसी के चलते फोटो क्रिएट होता है ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म में फोटो बन जाता है। देन वी कम्स टू साउंड एनर्जी। कैन साउंड एनर्जी मूव समथिंग? यस, साउंड एनर्जी मूव करा सकता है, साउंड एनर्जी से मूव होता है। देन सर कैन यू गिव सम एग्जांपल? या वेरी सिंपल, घर में स्पीकर होगा ही ऊपर, स्पीकर ऊपर जो भी है, मतलब साउंड सिस्टम या होम थिएटर। अब होम थिएटर को जोर से बजाओ और उसके सामने पतला पतला पेपर स्ट्रिप काट करके जो है ना स्पीकर के सामने रखो, देखना वो साउंड के साथ हिलता है, तो पता चलता है कि हाँ उस साउंड से कोई चीज मूव हो सकता है। अब साउंड एनर्जी, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट gives us
the sensation of hearing. Sound is the form of energy that produces the sensation of hearing. हम लोग को सुनने में मदद करता है. And many of you now is listening. Not all. सब कोई नहीं सुन रहा, हमको पता है. एक आध जन ऐसे भी होगा जो छोड़ करके मतलब ऑन कर दिया, अटेंडेंस लग गया, अब जो है क्या जरूरत है, हम लोग सब जानते हैं. या वेरी ट्रू, आप लोग सब जानते हो. और नहीं जानता तो टीचर तो है ही है, ट्यूशन टीचर है. अब तो जम के चला है अनअकैडमी, बायजूस और पता नहीं और कौन कौन सा है. बहुत जन उसका सब्सक्रिप्शन लिया है और पछता भी रहा है. या जो भी है, तो साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी से हम लोग कोई चीज को मूव करा सकते हैं. इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. सर अब हियरिंग कैसे होती है, हम लोग सुनते कैसे हैं? हम लोग के कान के अंदर में पर्दा होता है. ऑल ऑफ अस नो दैट. हम लोग अक्सर बोलते हैं मोरेंगे, कान का पर्दा फाड़ देंगे, बोलते हैं ना. तो कान में एक्चुअली एक पर्दा होता है और उस पर्दे के ठीक पीछे ना एक बोन होती है. बोन हड्डी है, पर्दे के साथ लगा हुआ, बहुत छोटा सा. और पर्दे के पीछे कान के अंदर में क्या होता है कि खोखला जगह है, उस जगह पे लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड है. वो फ्लूइड बाहर नहीं आता है. अगर कान का पर्दा छेद हो जाए तो वो फ्लूइड बाहर आता है. पस जैसा लगता है मगर पस नहीं है, वो कान में फ्लूइड होता है. अब क्या होता है, जैसे जैसे पर्दा वाइब्रेट होता है ना, तो क्या होता है उस फ्लूइड में वो हलचल प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. और ये वाइब्रेशन क्या होता है कि हम लोग के कान के अंदर में जो नर्व लगा हुआ है, वो नर्व उस वाइब्रेशंस को पिकअप करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है. तब ब्रेन इसको डिटेक्ट करके बोलता है अच्छा ये वाले साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. हम लोग का दिमाग बॉडी का सारा काम करता है. ओके, 1 मिनट लेफ्ट. आज फिर अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड एनर्जी. आज के लिए काफी खत्म हो जाएगा. आज मेरा नेटवर्क नहीं आया अभी तक, बस मोबाइल से चल रहा है और अच्छा ही चल गया है ना. सो हैव अ नाइस डे and get prepared for the next class you have. See you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Yeah. sir. Bye, sir.